Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, in our today's session, we are going to start with chapter number 12. Okay, and the name of this chapter is Animals Around Us. In chapter number 11, we have seen plants around us. Okay, but in this chapter, we are going to see the animals around us. Okay, before I start this chapter, I would like to talk about main points. What are the main points which we are going to through this, which we are going to see through this chapter? Okay, types of animals. कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं ये हम सब इस चैप्टर में देखने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट हैबिटाट ऑफ एनिमल्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटाट ऑफ एनिमल्स, ये कैसे रहते हैं. ठीक है. एंड द लास्ट, फूड फॉर एनिमल्स. वो खाते क्या हैं. ठीक है, वो एनिमल्स खाते क्या हैं. तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, अगेन a simple exercise you have to do with your own self. Okay, in front of you you can see there are 4 pictures are given. Okay, so आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखिए, बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करिए और इन सब के नाम जो ये नीचे ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना, आप इसमें लिखिए. ठीक है. मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ. वैसे आप सब लोगों को पता ही होगा इसमें क्या दिख रहा है. ठीक है, ये क्या है, ये बफालो है. ठीक है, तो आप यहाँ पे बफालो लिखेंगे. ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज खुद से करना है. ठीक है, चलो तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. We see different types of animals around us. Okay, so in our surrounding every day we see different types of animals. Okay, animals like elephants are very big and animals like rats are small. See my dear students, animals are big and small in size. Okay, at one side we have a very big animal named as elephant, and same on the another side we have very small animals called rats. Okay, both are animals but there's a difference between their shape and size. Some animals are even smaller than rats. अच्छा, बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जो रेड से भी छोटे होते हैं. ठीक है. एनिमल्स आर जनरली यूजफुल टू अस. अच्छा, आपको पता है सिर्फ प्लांट्स ही हमारे यूज के नहीं होते हैं. ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी हमारे बहुत यूज के होते हैं, ये भी हमारे बहुत काम आते हैं. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है. अच्छा, आप लोग जू जा गए हो. ठीक है, अगर आप लोग जू गए हो, आप लोगों ने जू में देखा हुआ है कितने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. ठीक है, तो जरा उनके बारे में याद करो तो आपको ये चैप्टर समझने में इजी रहेगा. ठीक है, चलो. There are different types of animals. We will learn about them here. Okay, my dear students. So, in our surrounding, we have different types of animals. Okay, now here we are going to learn about them. Okay, see, the first category of animals is wild animal. ठीक है, जो पहली कैटेगरी है हमारे एनिमल्स की वो है वाइल्ड एनिमल्स. Now, what is the meaning of wild animals? These animals live in the forest. Okay, so the animals who used to live in the forest, okay, are called as wild animals. Okay, elephants, tigers, lions, jackal, foxes, leopards, deer, wolf, etc. are wild animals. Okay, अच्छा, कौन कौन से हमारे wild animals होते हैं? Elephant, lion, tiger, jackal, wolf, deer. Okay, all these animals are our wild animals. Okay, here you can see the picture of tiger, leopard, jackal. Okay, so this is the example of your wild animals. Okay, and wild animals are literally very wild. Okay, that's why they used to live in jungle. We can't pet them. Okay, now after wild animals we are going to see domestic animals. ठीक है. अच्छा, आप सब लोगों में से बहुत से प्यारे बच्चों के घर पे डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे, जस्ट लाइक डॉग. ठीक है, कैट. ठीक है, बहुत से लोगों को रैबिट भी पालना बहुत पसंद है. तो आप लोग मुझे जरूर बताना आपके घर में अगर कोई पेट है तो कौन सा पेट है. ठीक है, तो आ जाओ. जो दूसरी कैटेगरी है हमारी एनिमल्स की वो है डोमेस्टिक एनिमल्स. अभी डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, लेट्स हैव अ लुक. These animals live in farms. Okay, wild animals used to live in jungle and domestic animals used to live in farms. Okay, they are very useful to us. अच्छा, ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना ये फार्म्स पे रहते हैं. ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूज के हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल हैं ये हमारे लिए. ठीक है, वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. अच्छा, ये क्यों हमारे यूज के लिए हैं? क्योंकि हम इनके थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाते हैं. कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं? लेट्स हैव अ लुक.
Cow, buffalo, goat, sheep, horses, ducks, and hens are domestic animals. Okay. So the example of domestic animals are cows, buffaloes, ducks, hens, and sheep, horses, goats, etc. and etc. All these are the example of our domestic animals. Okay. We get milk from cows and buffalo. Okay. So through cow and buffalo we get milk. ठीक है, कहते हैं ना मम्मी पापा कहते हैं ना कि दूध पीना चाहिए, तो वो दूध हमें कहाँ से मिलता है? वो दूध हमें बेसिकली दो एनिमल से मिलता है जो कि डोमेस्टिक होते हैं। वो कौन कौन से? तो काऊ होते हैं और बफालो होते हैं। ओके, वी गेट उल फ्रॉम शिप। ठीक है, अच्छा शिप से हमें क्या मिलता है? ठंडियों में हम जो उलन कपड़े पहनते हैं, नहीं होता अगर ठंडी लग रही है और हम अच्छे से कपड़े पहनते हैं गरम गरम, वो हमें कपड़े कहाँ से मिलते हैं? वो कपड़े हमें ये शिप से मिलता है। ठीक है, शिप से हमें उल मिलता है, उसी से हमारे वो उलन कपड़े बनते हैं। ठीक है, वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स। अच्छा, अंडे तो बहुत लोगों को खाना पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगा अंडे। ठीक है, तो एग्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स। ओके, हॉर्सेस एंड डंकीज कैरी लोड। ठीक है, अच्छा हॉर्स और डंकी किस काम के आते हैं, किस काम के लिए यूज होते हैं? दे यूज टू कैरी आवर लोड। ठीक है, तो चलो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे पिक्स आपको दिए हुए हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के। अच्छा ये देखिए, जो काऊ है उससे हमें ये दूध मिलता है। ठीक है, शिप हमको ऊल देता है, एंड हैन और डक क्या देते हैं? अंडे देते हैं हमें। और हॉर्सेस क्या काम करते हैं? ये हमारे लोड्स को कैरी करने में काम करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा हमने वाइल्ड एनिमल देख लिया, हमने डोमेस्टिक एनिमल देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम पेट एनिमल्स। ओके, नाउ सी सम एनिमल्स लिव इन आवर होम्स। अच्छा बहुत सारे एनिमल्स तो हमारे घर में रहते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछा था कि अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल हो तो आप जरूर मुझे बताना। ठीक है, तो जो ये पेट एनिमल्स होते हैं ना, ये हमारे घर में रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, they are called pet animals. Okay, so the animals who used to live with ourselves at our home, those animals are called as pet animals. ठीक है, so the basic example of pet animals are dog, cat, rabbit, etc. are pet animals. ठीक है, तो हम अपने घर में किस किस को रखते हैं? डॉग्स को रखते हैं, कैट्स को रखते हैं, रैबिट्स को रखते हैं। ठीक है, बेसिकली यही तीन हमारे पेट एनिमल होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से पेट एनिमल होते हैं। ठीक है, बट these three are the common pet animals which usually found in our household. Okay, now see, we play with them and take pleasure in being with them. हम इनके साथ क्या करते हैं? हम खेलते हैं। हमारे घर में अगर कोई डॉगी है, ठीक है, या हमारे घर में बिल्ली है, हम क्या करते हैं? उनके साथ खेलते हैं। हमें कितना अच्छा लगता है खेल के उनके साथ। ठीक है, हमारा माइंड रिफ्रेश होता है। अगर हमें गुस्सा आता है तो हम उनके साथ खेलते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, सो पेट एनिमल्स यही होते हैं। सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट द पिक्चर ऑफ द पेट एनिमल्स। ओके, dog, cat, hare. Hare means rabbit. Okay. Now, after wild animal, domestic animal, and pet animals, we have another category of animal, and the name of those category of animals are water animals. अच्छा, wild, domestic और pet ये पानी में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? ये लैंड पे रहते हैं, चाहे ये जंगल में रहे, चाहे ये डोमेस्टिक एनिमल रहे, मतलब फार्म्स पे हमारे रहे, या फिर हमारे घरों में रहे। ये तो लैंड पे ही रहते हैं ना। लेकिन एक फोर्थ कैटेगरी भी आती है हमारे एनिमल्स की जो पानी में रहती है। ठीक है, चलो आ जाओ देखो कौन कौन से वो वाटर एनिमल्स है। सम एनिमल्स लिव इन वाटर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो? फिश, डॉल्फिन, शार्क, स्टारफिश, octopus, etc. are water animals. Okay, so what are the examples of water animals? You can see here, my dear students: fish, dolphin, shark, starfish, octopus, etc. Okay, crocodile and frogs live in water and on land also. These animals are called amphibians. Okay, अच्छा देखो, water animals means aquatic animals. ठीक है, water animals are also called as your aquatic animals. Okay, अच्छा जो water animals होते हैं या जो aquatic animals होते हैं, ये तो हमारे पानी में रहते हैं। ठीक है, fish can't survive on land. ठीक है, आपने जो कविता पढ़ी होगी अपने हिंदी में, मछली जल की रानी है। ठीक है, तो आप जानते हो ना कि उसका जीवन ही पानी है। ठीक है, मतलब वो पानी के बिना नहीं जी सकती है। Fishes can't survive without water. Okay, similarly, dolphin, shark, starfish, octopus can't survive on land area. Okay, for their survival they need water. Okay, but यहाँ पर आप देख सकते हो fish and dolphin both are aquatic animals, means water animals. But crocodile
ये कहाँ आता है, ये कहाँ रहते हैं? आप देखते हो क्रोकोडाइल पानी में भी रहते हैं और क्रोकोडाइल आपके लैंड में भी रहते हैं। सिमिलरली आपके जो फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, frogs, crocodile or frog, they both used to live on water as well as land. That's why these two animals are called amphibians. Okay, my dear students, don't get confused with the term amphibians. ठीक है, amphibians क्या होता है आप कंफ्यूज मत होइएगा। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो ये क्रोकोडाइल होता है और आपका जो ये फ्रॉग है, ठीक है, ये जो दोनों के दोनों है ना, ये दोनों आपके पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, वाटर एनिमल में दो कैटेगरी होती है, ठीक है, एक जो सिर्फ पानी पे रहते हैं और एक जो पानी और लैंड दोनों में रहते हैं। ठीक है, उसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर एनिमल्स वी आर गोइंग टू सी अबाउट बर्ड्स। अच्छा, चिड़िया अच्छे लगते हैं, जैसे मैना, मैना है, गौरैया है, ठीक है, तोता है, हमें कितना अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, सो बर्ड्स क्या होते हैं, लेट्स हैव अ लुक। Birds can fly. They live in trees, in nest, or on the ground. Some birds, like ostrich and penguin, cannot fly. Birds lay eggs. अच्छा देखो, जानवर अंडे देते हैं? बताओ, अंडे देते हैं वो? नहीं ना, सिर्फ हैन और डक को छोड़ के जो अंडे देते हैं हमें। ठीक है, और इसके अलावा जो ये वाटर एनिमल्स हैं ये भी अंडे देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या लायन, टाइगर ये अंडे देते हैं? नहीं देते ना। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स क्या हैं? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड बर्ड? ओके, एनिमल्स कांट फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई। ठीक है, तो जो बर्ड्स होती है वो आपकी उड़ सकती हैं। ठीक है, एंड बर्ड्स यूज टू लिव इन द ट्री। ये कहाँ रहते हैं? ये पेड़ों पे रहते हैं। पेड़ों पे अपना घोंसला बनाते हैं, ये वहां रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये ग्राउंड पे भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने घोंसले में रहते हैं, नहीं, ये ग्राउंड पे भी रहते हैं। ठीक है, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन, लेट्स हैव अ लुक एट जो ऑस्ट्रिच और जो पेंगुइन होता है। हियर यू कैन सी पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच। ये जो दो कैटेगरी के आपके बर्ड्स होते हैं ये उड़ नहीं सकते हैं, दे कांट फ्लाई। ठीक है, अच्छा ये देखो, पैरट कैन फ्लाई। ओके, पैरट कैन फ्लाई, बट पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच कांट फ्लाई। इनके पास विंग्स होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा, ये अंडे दे सकते हैं। जो हमारे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स ले एग्स। ओके, so my dear student, I hope the concept of bird is clear to you. Birds can fly, okay, and birds can live both on the tree and on the land. Okay, and some birds like penguin and ostrich can't fly. Okay, and birds lay eggs. Birds क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा अब इसके बाद ना बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं। आई होप ये बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आते। ठीक है, अच्छा हमारे घरों में जो छिपकली आती है, लिजर्ड, ओह इट्स सो डर्टी। हमें डर लगता है छिपकली को देख के, और अगर डर नहीं लगता तो लगता है भाई जब छिपकली आती है उसको हम भगाने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये रेप्टाइल्स होते हैं। एम्फीबियंस, यू रिमेम्बर एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो आपके पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। और ये रेप्टाइल्स कौन होते हैं? ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। Snakes and lizards are called reptiles. They move by sliding or crawling. Okay, अच्छा देखो, जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो चल सकते हैं, दे कैन वॉक। ठीक है, दे कैन वॉक, जैसे फ्रॉग है। ओके, फ्रॉग्स कैन जंप। एंड जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो चल सकते हैं। ठीक है, बट यू नो व्हाट, snake and lizard means this is a snake and this is lizard, they can't walk. Okay, they crawl like this. Okay, वो चल नहीं सकते हैं। वो कैसे चलते हैं? अच्छा, जो स्नेक्स है वो कैसे चलते हैं? वो इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, और लिजर्ड्स भी क्या करती है? इस तरीके से पूरा कहाँ चलती हैं? अगर मैं बात करूं वॉल्स वगैरह पे, आप देखते हो ना छिपकली चिपकी हुई रहती है। ठीक है, हाँ, वो चिपकते हुए पूरा चलते हैं, मीन्स वो क्रॉल करते हुए चलते हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर रेप्टाइल मीन्स द एनिमल्स हु क्रॉल। ओके, जो रेंग के चलते हैं। ठीक है, तो वो आपके रेप्टाइल्स कहलाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर रेप्टाइल्स वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ एनिमल व्हिच लिव इन आवर सराउंडिंग एरिया आर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जो उड़ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, कॉकरोचेस है। बहुत कॉमन है घर में कॉकरोच। बहुत सारे कॉमन, बहुत डर्टी होते हैं, लेकिन ठीक है, घर में कॉकरोच नहीं रहना चाहिए। ठीक है,
जो फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, कॉकरोचेस हैं, ये कौन होते हैं? ये इंसेक्ट्स होते हैं, बट ये इंसेक्ट्स भी एनिमल ही होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि बहुत से एनिमल्स चूहे से भी छोटे होते हैं, तो ये सब चूहे से छोटे होते हैं, ठीक है, इन साइज। ओके, so I hope, my dear students, you all got a very good understanding of this chapter. Okay, so here are some interesting facts which you have to know. Some animals like polar bear, Arctic foxes and penguins live in cold areas where there is ice everywhere. ठीक है। अच्छा, अब देखो, अभी तक हमने जितना पढ़ा आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जानते हो बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका जो ये पोलर बियर है, आर्कटिक फॉक्सेस और पेंगुइन्स हैं, ये कहाँ रहते हैं? अच्छा, आप पोलर बियर को और पेंगुइन को हर जगह देख सकते हो? बताओ। जैसे बर्ड्स है, हम बर्ड्स को हर जगह देख सकते हैं, वी कैन सी पैरट एट एवरीवेयर, ओके, इन आवर सराउंडिंग, बट कैन वी सी पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्सेस एंड पेंगुइन एवरीवेयर? नो। अब क्यों नहीं देख सकते हम उन्हें? क्योंकि ये सब ना बहुत ठंडी जगहों पे रहते हैं, दे यूज्ड टू लिव इन वेरी कोल्ड एरिया, ओके। Polar bear, Arctic fox and penguins can't survive in warm areas, okay, for their survival they need ice, ठीक है, उनको आइस चाहिए, और आइस का मतलब क्या है? ठंडी, ठीक है। नाउ हैबिटाट ऑफ एनिमल्स, अभी तक तो हमने टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़े, नाउ वी आर गोइंग टू सी हैबिटाट ऑफ एनिमल्स, मतलब वो कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। Wild animals live in the forest. You all know, my dear students, wild animals used to live in forest. They live under or on the tree or in the caves. अच्छा, जो wild animals है ये कहाँ कहाँ रहते हैं? ये आपके या तो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, मतलब पेड़ों के अंदर रहते हैं, या तो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, या फिर केव्स में रहते हैं, ठीक है। जैसे देखो, पेड़ों के अंदर कौन रहता है? बहुत से जो चिड़िया होती हैं, आप देखते हो कि वो अपने घोंसले बनाती है, वो कहाँ बनाती है? वो पेड़ों के अंदर बनाती हैं, ठीक है। बहुत से रेप्टाइल्स होते हैं जो पेड़ों के अंदर रहते हैं, जैसे स्नेक है, स्नेक अपना होल बनाता है, वो पेड़ों के अंदर रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑन द ट्री, पेड़ों पे कौन रहता है? आपके बर्ड्स रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत से ऐसे आप देख सकते हो बंदर वगैरह रहते हैं, ठीक है। अच्छा, केव में कौन रहता है? Lion. Here you can see the tiger, lion and tiger, okay, they are resting in their respective caves, okay. So देखो, तो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं? पेड़ों के अंदर रहते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं, या फिर केव्स में रहते हैं, ओके। लायन, टाइगर, वुल्फ एक्सेट्रा लीव्स इन केव्स, ठीक है। सो लायन, टाइगर, वुल्फ एक्सेट्रा लीव्स इन द केव। अच्छा, केव क्या है? ये देख रहे हो आप, एक सर्कल वाला शेप है, दिस इज कॉल्ड केव, ठीक है। बट monkeys live on tree. बंदर कहाँ रहते हैं? Here you can see in this picture, monkey is living on the tree, ठीक है। bees live in their hive, okay. अच्छा, अब ये देखो, ये bees हैं, हनी भी बनाती हैं ये, ठीक है। ये कहाँ रहती हैं? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जो उनका बी हाइव होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है? ये पेड़ों पर लटका होता है, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये सब कहाँ कहाँ रहते हैं, सारे के सारे एनिमल्स, ओके। नाउ beehive in their hive built in a tree or on the outer wall of building, ठीक है। तो बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते कहाँ होते हैं? पेड़ों से लटके होते हैं, या फिर बिल्डिंग्स पे लटके होते हैं, ठीक है। Some birds live in their nest made by them. बहुत से बर्ड्स कहाँ रहती हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वो अपने हाथों से अपना घर बनाती हैं, मीन्स अपना नेस्ट बनाती हैं, ठीक है। Domestic animals and pet animals live in the shelters made for them. Okay, and now domestic animals and pet animals used to live with us, okay, or the shelter made by us, okay. Now, what kind of food all these animals eat? Okay, for their own survival, they used to eat food. Okay, they used to eat food, okay. See, all animals need food to live, okay. All the animals need food for their survival, because without eating they can't survive. Some animals eat plants, but some animals eat the flesh of other animals, okay. जैसे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, हमारे पेट एनिमल्स हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स वो क्या करते हैं? वो घास खाते हैं, लेकिन बहुत से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो वो उन जानवरों को खाते हैं, ठीक है, ओके। दे यूज टू ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ओके। सी, cow, buffalo, goat, sheep, horse, deer, camel, elephant, etc. eat plants. तो कौन कौन से एनिमल्स आपके प्लांट्स खाते हैं? लेट्स हैव अ लुक। काऊ, buffalo, goat, sheep,
horse, deer, camel, elephant. All these animals are our domestic animals. Okay, so they used to eat plants. Okay, now all these animals are called as herbivorous animals. Okay, now what is the meaning of herbivorous animal? The animals who used to eat grasses. Okay, जो घास खाते हैं, ठीक है, उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं. अच्छा, इस चैप्टर में ना आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट और न्यू टर्म्स सुनने को मिले. एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का क्या मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स? द एनिमल्स हु यूज टू लीव बोथ ऑन वाटर एंड ऑन लैंड. ठीक है, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग के चलते हैं. ठीक है, नाउ हियर अगेन यू गॉट टू सी अ न्यू टर्म कॉल्ड एज हर्बीवोरस एनिमल. ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल का क्या मतलब है? जो घास खाते हैं. और घास कौन कौन खाता है? ठीक है, काउ, बफालो, गोट, शिप, हॉर्सेस, डियर, कैमल्स एक्सेट्रा. ठीक है, एलिफेंट घास नहीं खाता है, लेकिन एलिफेंट मीट भी नहीं खाता है. ठीक है, वो शुगर केन खाता है. ठीक है, एलिफेंट्स क्या खाते हैं? शुगर केन खाते हैं, बनानास खाते हैं. तो ये सब क्या है? ये सब तो प्लांट ही है. ठीक है, चलो. Now, after herbivorous animal, we are going to see who are carnivorous animals. Here you can see who are carnivorous animals. Carnivorous क्या है? Let's have a look. Lion, tiger, leopard, wolf, etc. eat the flesh of other animals. Okay, animals like lion, tiger, leopard, wolf, okay, etc. and etc. All these animals used to eat the flesh of other animals. Means वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, इसीलिए ये सब कार्निवोरस एनिमल्स कहलाते हैं. ठीक है, ये घास खा के जिंदा नहीं रह सकते. ठीक है, दे कांट सर्वाइव बाय ईटिंग ग्रास. ओके, जो जानवर प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं. जो जानवर मीट खाते हैं किसी दूसरे एनिमल का, उसको हम कार्निवोरस कहते हैं. ठीक है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, वी ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू एन अनदर कैटेगरी. ओके, लेट्स हैव अ लुक. Some animals eat plant and flesh of other animals too. They are called omnivorous. Bear, crow, etc. are omnivorous animals. अच्छा, यहाँ पे ना omnivorous animal आया. अभी omnivorous animal क्या होता है? बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं who used to eat grass as well as flesh of other animals. ठीक है, तो वो कौन कौन से जानवर हैं आपके? देखो आप, बियर है, क्रो है, एक्सेट्रा. ठीक है, जो जो बियर होता है, जो क्रो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये घास भी खाते हैं, ये प्लांट्स भी खाते हैं, और साथ ही साथ ये दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. ठीक है, इवन वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ omnivorous. Okay, we are not animal, okay, but we belongs to omnivorous category. Okay, so आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको ये फूड के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, हार्बिवोरस मींस वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. कार्निवोरस मींस जो दूसरे जानवरों को खाते हैं. ओमनिवोरस मींस जो दोनों खाते हैं. ठीक है, चलो. Now here are some valued facts. What are those valued facts? Let's have a look. We should keep away from wild animals and not tease them. हमें जंगली जानवरों से हमेशा दूर रहना चाहिए, उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए. और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स है, दे कैन अटैक अस. ओके, अब ऑसम फैक्ट्स क्या है? वेयर विल वाइल्ड एनिमल्स लिव इफ फॉरेस्ट आर कट डाउन? अच्छा, आप जानते हो फॉरेस्ट कितना ज्यादा कट हो रहे हैं. अगर सारे के सारे फॉरेस्ट कट हो जाएंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे फिर? ठीक है, सो यहाँ पे हमने बहुत से न्यू वर्ड्स भी सीखे हैं. लेट्स हैव अ लुक. हार्बिवोरस मींस द एनिमल्स हु ईट प्लांट्स. Carnivorous means the animals that eat the flesh of other animals. Omnivorous means animals that eat plants and flesh of other animals both. Okay, now here are some points which you all have to remember, my dear students. Wild animals lives in the forest. Okay, domestic animals are very useful for us. We keep pet animals to play and for our pleasure. Fish, shark, etc. live in water. Some animals eat plants, some animals eat flesh of other animals, and some animals eat both. Okay, so this is the summary of this chapter. I hope, my dear student, you got a very good understanding of this chapter. Okay, now go thoroughly through this chapter and complete the exercise based on this chapter. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.